نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے آج ہم لوگ 78 آیت پڑھیں گے. ویری اسمال آیت ہے، ویری چھوٹا آیت ہے اور ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. اور آئی تھنک آپ لوگ ہوم ورک بھیجے ہیں آیت نمبر 67 68 اینڈ 69. اس کا ورڈ ٹو ورڈ بھیجیں بیکاز سیکوینس ہے. اٹ بیکمس ایزی فار یو آل ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے، چلیے لفظی وضاحت دیکھیں گے آیت کا. قولو انہوں نے کہا. انہوں نے کہا مطلب کس نے کہا؟ کس نے کہا گرلس؟ موسیٰ علیہ السلام. نہیں، قولو انہوں نے کہا ادعو دعا کرو لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے. بنی اسرائیل لوگ کہتے ہیں کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے خدا سے دعا کریں. قولو انہوں نے کہا ادعو. پہلا کیا تھا آیت نمبر 69 میں؟ کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ اپنے رب سے دعا کریں کہ کون سی گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے. اوکے، گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتا ہے. دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ گائے جو ہے یلو کلر کی، زرد کلر کی ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن کہتے ہیں کہ قولو انہوں نے کہا ادعو دعا کرو. دا واو عین دعوت، دعا اسی سے ہے. لنا ہمارے لیے، لا مطلب لیے، نا مطلب ہمارے. رب کا اپنے رب سے. رب کا، رب مطلب رب، کا مطلب آپ کے سامنے والے کو خطاب. یبین وہ واضح کرتے، بیان کرتے، وہ واضح کرتے. لنا ہمارے لیے. ریپیٹڈ ورڈ ہے گرلس. ماں کیسی ہو، ہیا وہ. ہیا مطلب وہ گائے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ گائے. یہ کیسی گائے کس طرح کی ہو. انا بے شک البقرہ گائیں، تشابہ متشابہ ہو گئی ہے. متشابہ مطلب بہت سارے. علینا ہمارے لیے. ہمارے لیے ایکچولی جو آپ کلر بولے ہیں یلو کلر کا رہنا چاہیے، گولڈن کلر کا رہنا چاہیے، وہ ایکچولی ہمارے لیے متشابہ ہے مطلب سملر ہے. ویسے گائے ہمیں ملی جلی مل رہی ہے، سملر ہے. تو گیو مور آف ڈیٹیل آف دا گائے، مطلب گائے کے اور ڈیٹیلز آپ بولیں. وَإِنَّ اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر چاہا اللہ، لا مہتدون البتہ ہم ضرور پالیں گے. اگر اللہ تعالیٰ چاہا تو ہم لوگ ضرور پالیں گے. Now they use the word انشاءاللہ بیکاز ان کو ملنا مشکل ہو رہا تھا، بیکاز گولڈن کلر کی گائے ملنا آسان بات نہیں تھا، یلو کلر کی گائے آسان نہیں تھا. they wanted more of detail. جہاں پہ کہتے ہیں کہ اچھا گولڈن کلر مشکل ہے، کچھ اور بتائیں گائے کے بارے میں. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آیت نمبر 71 میں آپ کو آتا ہے کہ دا نیکسٹ چیز ان لوگ کیا مانگتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں گائے کے بارے میں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون. اگر اللہ چاہا تو ہم ضرور اس کو پالیں گے. ٹھیک ہے، دس از واٹ اٹ از بینگ سیڈ. تو یہاں کی اس کا میننگ کیا ہے؟ تمہارے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے وہ اور کس طرح کی ہو، کیونکہ ہمیں گائے جو ہے ایک جیسی دکھتی ہے. سو اللہ چاہا تو ضرور ہم پالیں گے. اب یہاں پہ they have used the word انشاءاللہ. اس سے پہلے they have not used the word انشاءاللہ over here. اب یہاں پہ they use the word انشاءاللہ. رنگ بھی واضح کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ رنگ بھی واضح کر دیا ہے. جب رنگ واضح کر دیا تھا تو immediately they should go for that one. اپنے آپ کے لیے مشکلات بڑھاتے جا رہے تھے یہ. لیکن اس میں ایک گڈ تھنگ یہ کہے تھے کہ they have used the word انشاءاللہ.
if Allah wills it will happen. रंग भी वाजे हो गया, उसके बावजूद भी मुताबला करना शुरू कर दिए कि और इसका मतलब और कैसी होना चाहिए। तो तीसरा मुताबला है कि what else should be there, क्या वो काम करने वाली हो या काम नहीं करने वाली हो। The ayat number 71 talks about that one in detail. ओके बनी इसराइल को गाय के बारे में तीसरा मुताबला करते हैं कि क्या करें, मतलब काम करने वाली हो, कैसी कर हो, क्या वो हल चलाने वाली हो। ये सब क्वेश्चंस अगेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो अपने सरकशी से, मतलब दे डोंट वांट टू डू इट, तो बहानेबाजी करते हैं, अल्लाह का हुक्म को टालते हैं, टाल मटोल करते हैं, अल्लाह का हुक्म मानना नहीं चाहते, तो बहाने बनाते हैं टू गेट रिड ऑफ दैट वन, क्योंकि उनके दिल में गाय की मोहब्बत है, तो गाय को वो जुबा करना पसंद नहीं करते। फॉर दैट रीजन दे आर गिविंग सो मेनी रीजंस ओवर हियर। ओके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 चीजों के बारे में स्ट्रेस दिया गया है। एक चीज क्या? इन्ना। ओके इन्ना मतलब क्या? बेशक, जरूर ब जरूर होगा। ला जो है, ला इन्ना जो है हरफे तौकीदिन व नस्बिन बोलते हैं, तौकीद के लिए, ताकीद के लिए है, स्ट्रेस करने के लिए। ला जो है, ला मुहतदून, अलबत्ता हम जरूर पालेंगे। ला भी एक्चुअली इट इज बीइंग यूज्ड फॉर व्हाट? ताकीद, ताकीद के लिए कि डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट इफ अल्लाह विल्स। ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या चीज हमें पता चल रही है? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर कमिंग टू नो ओवर हियर इज बनी इसराइल का इंशाअल्लाह कहना एक वाज़े हुक्म, इसके वजह से कि हम जरूर पालेंगे। मुफस्सरीन क्या कहते हैं कि अगरचे ये लोग इंशाअल्लाह नहीं कहते थे, तो वो कयामत तक गाय को ढूंढते रहते थे, कयामत तक वो गाय को ढूंढते रहते। they will not get the गाय because they have not used the word इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिया गया है। अगरचे इंशाअल्लाह कोई भी काम जब करते हैं तो इंशाअल्लाह कहना जरूरी है। ओके फर्ज है नहीं बोलूंगी, मुस्तहब, पसंदीदा है। अब आज के दौर में, आज के मास्टर में ये हुआ है कि इंशाल्लाह इज बीइंग यूज्ड फॉर नॉट डूइंग द वर्क। अगर आपको कहीं जाना है, कोई बुलाएंगे आपको, आप आए हमारे घर, तो हम कहते क्या है? हाँ इंशाल्लाह आएंगे, देखेंगे इंशाल्लाह। सो वी यूज, दिल में तो इरादा नहीं है, दिल में इरादा नहीं है, वी डोंट वांट टू गो, वी डोंट वांट टू गो, उसका एफर्ट भी नहीं डालते, उसका इरादा नहीं करते, रजामंदी नहीं है, कोशिश नहीं है, कुछ नहीं है, बट वी यूज द वर्ड इंशाल्लाह। दैट मीन्स तुम जाओ, हम लोग नहीं आने वाले हैं। सो सबके दिमाग में ये पोर्ट्रेट हो गया है कि ये इंशाल्लाह बोल रहा है, दैट मीन्स ही विल नॉट कम। हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आएंगे। सो लेट अस नॉट यूज दोज वर्ड्स। इफ अल्लाह विल्स ही विल कम, वी विल कम। बट आपका ये भी देखें कि पॉसिबिलिटी है या नहीं। अगर आपका क्लास है या आप स्कूल में है, आपको पता है आपको स्कूल में है, आप एग्जाम लिखने वाले हैं, अगर वो टाइम कोई आपको दावत देता है, कोई बुलाता है, यू कैन नॉट से इंशाल्लाह विल कम, बिकॉज आपका इरादा है ही नहीं। वो टालने के लिए आप इंशाल्लाह बोल रहे हैं, आपका इरादा है ही नहीं, बिकॉज इरादा इसलिए नहीं है बिकॉज आई एम राइटिंग, मैं कमिटेड हूँ ऑलरेडी, it is not possible for me to come, so you have to say this time it is not possible, but शाम में आना है तो मैं आ सकूंगी, शाम में possibility is there, so कोशिश कर सकूंगी, इंशाल्लाह will come। so that means यहाँ पे आपका इरादा है, आपका नीयत है, इरादा है, at the same time आपकी कोशिश भी है। So this is very important. So inshallah word has to be used in a proper sense because the importance of inshallah is very much in life. ठीक है, अंबिया लोग भी इंशाल्लाह कहते थे। few of the places I'll be quoting it. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत देता है कि आप इंशाल्लाह, सूरह यूसुफ में, ओके सॉरी, सूरह कहाफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आप इंशाल्लाह जरूर कहें, कोई भी चीज आप करने से पहले इंशाल्लाह कहें, कोई भी काम होने से पहले, कोई भी बात करने से पहले आप इंशाल्लाह जरूर कहें। ये एक्चुअली होता कब है? सूरह कहाफ में जब क्वेश्चंस पूछते हैं बनी इसराइल लोग, क्वेश्चंस पूछते हैं कि अच्छा ये बताएं, ये सवालात थे सूरह कहाफ में, तो ही सेज मैं कल बताऊंगा,
he has not used the word inshallah. उसके बाद he was waiting for wahi to come, क्योंकि उनके पास तो जवाब नहीं था. he was waiting for जिब्राइल अलैहिस्सलाम. जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आते, for एक लॉन्ग अरसा हो जाता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आते. उसके बाद ही कहते कि तुमने क्यों ना कहा, तुमने क्यों नहीं कहा इंशाअल्लाह कल बताऊंगा. तुम अगर इंशाअल्लाह कल बताऊंगा बोलते थे तो द नेक्स्ट डे वही आ जाती थी. यू हैव टोल्ड द आंसर. So again Allah Ta'ala remind कर रहा है कि use the word inshallah, don't just say I will tell you tomorrow, use the word inshallah. उसी तरह यहाँ पे सूरह यूसुफ भी inshallah word use करते हैं जब वो अपने भाइयों को मिस्र में दाखिल करते वक्त. he says कि inshallah आप आ जाए मिस्र, अगर अल्लाह चाहा तो हर चीज अच्छा रहेगा. everything will go on well if Allah wills. So यहाँ पे inshallah word is being quoted. उसी तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम भी इंशाअल्लाह कहते हैं. वो कब कहते हैं? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उनको ख्वाब में आया था, अल्लाह ताला हुक्म देता है कि उनको जुबा करें. ओके, उनको जुबा करें. तो उसके बारे में इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहा तो वो कहते हैं कि या अब्बा जान, जो आपको हुक्म मिला है आप वो कर दीजिए. इंशाल्लाह आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे. इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहा तो आप मुझे सब्र वालों में से पाएंगे. ये जब इरादा किए थे, when he told these words, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या जबरदस्त मदद करता है इस्माइल अलैहिस्सलाम को. जहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा के एक एक गोट कम्स डाउन ओवर देयर. ओके, एक शीप आ जाता है, उसके बाद शीप को जुबा किया जाता है. सो दैट इज व्हाट अल्लाह ताला आसान कर देता है काम. उसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम भी इंशाल्लाह कहते हैं जब वो मदियन जाते हैं, जब शादी के मौके पे, मतलब शादी इज अ कॉन्ट्रैक्ट राइट, तो शादी के मौके पे शादी का कॉन्ट्रैक्ट करते हुए वो कहते हैं कि इंशाल्लाह आप मुझे नेक लोगों में से पाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट मी, इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहा तो आप मुझे नेक लोगों में से पाएंगे, मैं नेक इंसान रहूंगा. सो यहाँ पे नबूवत नहीं आई थी किसे मूसा अलैहिस्सलाम को. ठीक है, इस आयत से हमें पता क्या चलता है? इस आयत से पहली चीज हमें ये मालूम होता है कि सवालात ज्यादा नहीं करना चाहिए. पहली चीज, सवालात ज्यादा नहीं करना चाहिए. अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हुक्म देता है हमें मानना चाहिए rather than asking for more of questions. दूसरी चीज, कोई भी कामों में बरकत के लिए भी इंशाल्लाह कहना चाहिए. अगर जब हम लोग इंशाल्लाह कहेंगे और वो काम करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस काम में बरकत दे देता है. लाइक इमाम नबवी कहते हैं कि जब भी इंसान कोई भी काम करने का इरादा करता है तो उसके लिए मुस्तहब है, पसंदीदा है कि उसमें बरकत हासिल करने के लिए वो अल्लाह का हुक्म जो दैट इज इंशाल्लाह कहकर वो काम करे. When he says इंशाल्लाह and he does the work, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस काम में बरकत दे देगा. दूसरी चीज ये है कि अल्लाह की मदद के साथ जब कोई काम करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है, आसान हो जाता है. काम मुश्किल नहीं रहता है, अल्लाह ताला काम आसान कर देता है. So in our life we have to make sure inshallah word has to be used in a proper sense rather than going in a wrong sense. That is very important. ठीक है, तो alhamdulillah we are done with ayat number 70. inshallah in our class, next class, ayat number 71 पढ़ेंगे in detail. सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Waalaikumsalam.